Hello everyone, today we are going to discussing about the female causes, treatment and all the symptoms important for the exam point of view, especially to crack your semester exam or your uh, international. If you're fond of like me, if you want to crack your USMLE or NRE exam, so follow and more about in detail comment. If you want to learn more on the different topics, and comment below your favorite topic I'm going to teach. So what is female infertility? Simply, the definition is inability to conceive after 12 months of irregular or irregular unprotected intercourse. Or we can diagnose if after 6 months if woman is greater than 35 years. टोटली डिफरेंट. हमारे पास पेशेंट्स आ जाते हैं आफ्टर द मैरिज ऑफ 2 months और 4 months, और उसको हम डायग्नोज नहीं कर सकते एज इनफर्टिलिटी बिकॉज अर्ली टाइम पीरियड ऑफ गिविंग हार्मोनल फॉर कंसीविंग थिंग्स इट मे कॉज द ओवर स्टिमुलेशन ऑफ द ओवरीज. एग्स जो है वो उसमें अच्छे नहीं बन सकते और ओवर स्टिमुलेशन हो जाती है ओवरीज की, तो हम टाइम देते हैं. मोस्टली जो हम डायग्नोज करते हैं इनफर्टिलिटी को वो शादी के 12 महीने के बाद, अगर बच्चा नहीं हो रहा तो उसको हम जो है वो डायग्नोज करेंगे दैट पेशेंट और दैट वुमेन इज इनफर्टिल. और yes, totally depend on age factor also. If a woman is 35 greater than 35-year-old and after the marriage she is like उसकी ओवुलेशन को टाइम पीरियड हो गया है, 6 महीने से इंटरकोर्स हो रहा है, सारी कुछ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो रहा है, उसके बाद भी वो कंसीव नहीं कर रही, डज मीन शी इज़ इनफर्टाइल बिकॉज ऑफ एज, बिकॉज हर maybe she gonna to go in premature menopause situation. That is a big deal. Or another big topic to discussing about female fertility, female issues or these. Now we're going to discussing about the cause female infertile woman and how we gonna to diagnose the woman, or if a patient come in early age and after 35-year age, and how we going to diagnose these all things, and what is the main cause and what is the factors and what is the treatment. The most common cause of overall is ovulatory disorder, which is PCOS, for example. Ovulatory disorder may be 30 to 40% can cause infertility. Second one is tubal cause, which is like PID or tuberculosis. Most common is uterine cause, which may be the fibroids and Asherman syndromes. Or so we are going to discussing about the ovulatory disorder, which is very important, and patient should know about their ovulation cycle. Now you're living in a 21st century and everybody knows that how to you should know about your ovulation cycle, how to measure, how to know about your ovulation. Simply is that आप अपने period के first day से day count करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 12 13 and 14. That 14 day of your period from the first day, which one is your ovulation day, उस day आपकी ovulation होती है, and that day very maximum chances of conceiving your if you don't conceive in your ovulatory period, then you must diagnose with your gynec or your physician or your gynecologist. So the ovulatory disorders is 30 to 40%, like PCOS, hypothalamic amenorrhea, stress, weight loss, excessive exercises, and hypoprolactemia can cause thyroid disorder and premature ovarian failure. These all are ovulatory disorders. Second one is tubal peritoneal factors, like 25 to 35%. These are in like pelvic inflammatory diseases, PID, chlamydia, gonorrhea, ट्यूबरक्लोसिस एंडेमिक रीजन, लाइक साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा ये पाए जाते हैं. ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज़्यादा पाई जाती है साउथ एशिया में. एंडोमेट्रोसिस हो सकती है, पैल्विक सर्जरीज और एडिशंस, ये सारी चीज़ें कॉज हो सकती हैं किसकी, इनफर्टिलिटी की. यूटेराइन फैक्टर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, लाइक कॉन्जेनाइटल सेप्टेट हो सकता है, बाइकॉर्नियोड यूट्रस हो सकता है, आपकी एनाटॉमी में कुछ मसला हो सकता है, एक्यूरेट फाइब्राइड हो सकती हैं, पॉलिप्स हो सकती हैं, एशरमैन सिंड्रोम हो सकता है, लाइक इंट्रा यूटेराइन एडिशंस भी हो सकती हैं. अगर एडिशंस हैं तो भी पेशेंट cannot conceive. So treatments are available. Fourth one is the most cervical factor, which is the cervical stenosis or hostile cervical mucus, chronic cervicitis infection. एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज पाई जाती हैं इसके अंदर, जिसमें क्या होता है कि वो किल कर देती हैं स्पर्म. सिस्टमेटिक हो सकता है, एज रिलेटेड. हाँ, एज रिलेटेड तब हो सकता है अगर आपका पेशेंट इज ग्रेटर देन 35-year-old एंड ओवेरियन रिजर्व, लाइक क्रोनिक इलनेसेस है, डायबिटिक मेलिटस है, सीलियक डिजीज है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है कोई, तो उसमें भी ओबेसिटी और वेट गेन की वजह से भी आपका सिस्टमेटिक और एज फैक्टर कैन कॉज इनफर्टिलिटी. क्लिनिकल फीचर्स में अगर पेशेंट आपके पास आएगा तो आप उससे हिस्ट्री लेंगे इनफर्टिलिटी की, गायनी की हिस्ट्री प्रॉपर लेंगे, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेंगे, पास हिस्ट्री लेंगे, सिम्टम्स पूछेंगे, पेन वगैरह तो नहीं है, पेल्विक
एग्जामिनेशन करेंगे, उसके बाद आप उसका अल्ट्रासाउंड भी करवाएंगे, TVS भी करवाएंगे, एब्डोमिनल करवाएंगे, TVS भी करवाएंगे, ठीक है। फर्स्ट हिस्ट्री में आप उससे पूछेंगे वाई नॉट कंसीविंग आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। इफ़ नॉट कंसीविंग देन देयर इज़ एनी एग्जामिनेशन और टेस्ट फ्रॉम उन्होंने पिछले किसी कंसल्टेंट से करवाए हुए अगर हैं तो यू कैन जस्ट वॉच एंड देन डायग्नोज। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री में आप पूछ सकते हैं ओलिगोमेनोरिया तो नहीं है, एमेनोरिया तो नहीं है, ओवुलेशन तो नहीं है, PCOS वगैरह को कोई इशू तो नहीं है, हाइपोथैलेमिक थायराइड वगैरह को कोई इशू तो नहीं है। पास हिस्ट्री में आप उससे PID वगैरह, रिकरेंट इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस, अपेंडिसाइटिस, सर्जरीज, ट्यूबल डैमेज, इन सारी चीज़ों के बारे में। सिम्टोमेटिक रिलेटेड कॉज आप उससे पूछ सकते हैं कि एक्नी होती है चेहरे पे, उसके बियर्ड फेस तो नहीं है लाइक PCOS, और ग्लाइक्टोरिया, एमनोरिया, हाइपरप्रोलेक्टिमिया तो नहीं है, एग्जामिनेशन करवाएंगे आप, एंडोमेट्रियोसिस देखेंगे अगर है या नहीं है, साइक्लिक मेनोर्जिया नहीं है, फाइब्रॉइड्स। इन्वेस्टिगेशन में आप सबसे ज़्यादा हाई यील्ड जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो हम करवाते हैं FSH और LH और एस्ट्राडायल ओवरियन रिजर्व करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम प्रोलेक्टिन करवाते हैं, हाइपरप्रोलेक्टिमिया उसका देखते हैं कि हाइपरप्रोलेक्टिमिया तो नहीं है, TSH देखते हैं, थायराइड डिसऑर्डर्स देखते हैं, ठीक है। AMH और एंटीमुलरिन हार्मोन्स जो ओवेरियन रिजर्व्स होती हैं वो देखते हैं कि लो इन प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर में तो पेशेंट नहीं, ये बहुत बड़ा मेन कॉज होता है और मिस डायग्नोज होता है मोस्टली कंसल्टेंट से, और वो उनको हार्मोनल मेडिसिन दे के उनकी ओवरीज को इतना ओवर स्टिमुलेट कर देती हैं कि फिर वो पेशेंट कंसीव करने के बजाय वेट गेन ही कर रही होती है। ओवुलेशन टेस्टिंग करवाते हैं आप, वो जो कि डे 21 पे होता है, जो कि हम सीरम प्रोजेस्टेरोन ग्रेटर देन 3 जो है वो नैनोग्राम और पर मिलीलीटर आ जाए तो ओवुलेशन उन दिनों में होती है, ठीक है। 21 डे पे हम सीरम प्रोजेस्टेरोन का टेस्ट करवा, ट्यूबल पोटेंसी देखते हैं अगर ट्यूब्स वगैरह कोई ब्लॉक तो नहीं है, जो है वो HCG हिस्टेरेक्टोसल्पेंजोग्राफी करवाते हैं, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है एवरी इनफर्टाइल पेशेंट मेरी नज़र में, क्योंकि मोस्टली पेशेंट इसमें मिसडायग्नोज होते हैं। सोनो हिस्टोग्राफी करवाते हैं, ठीक है। लेप्रोस्कोपिक तरीके से भी देखा जा सकता है विद क्रोमो परट्यूबेशन जिसको हम कहते हैं, जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है, सही है। यूटेराइन एवोल्यूशन करके देखते हैं, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड जो कि आई हैव ऑलरेडी मेंशन बिफोर, हिस्ट्रोस्कोपी भी करके देख सकते हैं हम, ठीक है। मेल पार्टनर की ऑलवेज सीरम एनालिसिस करवाएं, फर्स्ट रूल आउट द मेल फैक्टर, जो कि मैं पहले भी अपनी मेल इनफर्टिलिटी की वीडियोस में बता चुकी हूँ, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा मिसडायग्नोज यही चीज़, क्योंकि मेल अपने इश्यूज़ भी नहीं बता रहे होते और आगे जो है वो कंसल्टेंट की तरफ तो जाना तो उनको बहुत बड़ा मौत वाला सा लगता है कि भाई हम जो है वो किसी कमी का शिकार हैं, वो बजाय उस चीज़ के कि वो एक एहसास कमतरी में चले जाए। ट्रीटमेंट जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ ये है कि आप जो है वो पेशेंट की जो है वो वेट रिडक्शन करवाते हो, अगर PCOS है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करवाते हो, थायराइड और प्रोलेक्टिन डिसऑर्डर्स हैं तो आप उसको उसका ट्रीटमेंट देते हो, ठीक है। टिमिड इंटरकोर्स जो है हम उसको डे देते हैं, उसके एवोल्यूशन डे के हिसाब से 12 to 16 डेज़ ऑफ एवरी 28 डे साइकिल के अंदर जो 12 से 16 दिन होते हैं उसके बीच में जो है वो उसका ओवुलेशन साइकिल पीरियड होता है, उसको फॉलो करने के लिए कहते हैं। मैं तो सबसे पहले अपने किसी भी पेशेंट को यही कहती हूँ कि आप सबसे पहले अपनी ओवुलेशन को ट्रैक करें, क्योंकि अगर आप ओवुलेशन से पहले इंटरकोर्स करे हो या बाद में करे हो, यू नॉट गोइंग टू कंसीव। ओवुलेटरी डिसऑर्डर में आप क्या कहते हैं कि फर्स्ट लाइन जो है वो हम क्लोमिफेन सिट्रेट देते हैं, ठीक है, और लेट्रोजोल देते हैं। जो है वो PCOS वगैरह है तो उसके लिए भी हम ट्रीटमेंट हार्मोनल स्टार्ट करवाते हैं। इफ़ कोई रेजिस्टेंस आ रही है लाइक गोनाडोट्रोफिन है, FSH है, LH, इसको फिर इंजेक्ट करवाते हैं। एड्यूसेंट है, मेटफॉर्मिन है, अगर कोई DM का पेशेंट है, डायबिटिक मेलेटस है तो उसको उस तरीके से, इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो उसको उस तरीके से हम ट्रीट करते हैं। ट्यूबल पेटेंसी, अगर पेरिटोनियल फैक्टर्स आ रहे हैं तो सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक मेथड्स आर अवेलेबल। एडिनोलाइसिस करवाते हैं, सल्पिंजिनोटोमी करवाते हैं, हाइड्रोसेल्पिंग्स करवाते हैं, और अगर इन सब में भी पेशेंट फेल जा रहा है तो फिर हम IVF की तरफ जाते हैं। IVF इज़ इररिपेयरेबल ट्यूबल डैमेज, ठीक है, तो हम उसको IVF करवाते हैं, ठीक है। IVF की तरफ काउंसल करते हैं, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन की तरफ, सही है। यूटेराइन कॉज अगर उसको हम देखें तो हिस्ट्रोस्कोपिक मायोमेक्टमी और
एडियोलाइसिस जो होता है, सेप्टम रिसेक्शन जिसको हम कहते हैं, जिसको मोस्टली जो है वो यूटेराइन कॉज होता है, उसको ट्रीट करते हैं। सर्वाइकल फैक्टर्स अगर हैं तो IUI इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन करवाते हैं। इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन के बाद भी अगर नहीं हो रहा तो फिर हम दुआएं ही कर सकते हैं। ART और असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स ये जो मौजूद है हमारे पास, हम इनकी तरफ पेशेंट को जो है वो करते हैं रेफ़र, उससे पहले कि